Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss one of the very important topic. It is related to the Departmental Promotion Committee (DPC) sealed cover procedure. You know that government servants under suspension, and if any disciplinary proceeding is pending against the government servant, and if the government servant also facing any criminal prosecution, and at that time decision of DPC about promotion would be in sealed cover. So it's a very important topic. I will discuss everything. So my friends, please like my channel, share my channel, so that other people they can get benefit, and through patience you must listen, and you can get very interesting information, and it is a very important topic. And also in this topic I will discuss 10 multiple choice questions also, according to the latest pattern, what type of questions coming nowadays. So please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. So you see, government servants to whom sealed cover procedure is applicable, you know that promotion cases, basically departmental promotion committee decide the zone of consideration. It means decide about the promotion of the corresponding employee. So it is given at the time of consideration of the cases of government servants for promotion. Details of government servants in the consideration zone for promotion falling under the following categories should be specially brought to the notice of the departmental promotion committee. यदि डीपीसी बैठता है प्रमोशन के लिए, और इस केस में ये सर्कमस्टांसेस आ जाता है, एक सर्कमस्टांस है गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर सस्पेंशन, एक्चुअली डीपीसी अभी डिसाइड करेगा कि रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय के ऊपर प्रमोशन के लिए, बट ये एक सर्कमस्टांस आ जाता है. सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, यानी चार्जशीट issued to the government servant and disciplinary proceeding is pending. Another one, the government servant in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending. ये बहुत 3 important केस है. वन साइड में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी अभी डिसाइड करेगा कि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई का प्रमोशन के बारे में, मगर ये सर्कमस्टांसेस आ जाता है. तो जब ये सर्कमस्टांसेस आ जाएगा तो डीपीसी को इन्फॉर्म किया जाएगा. Okay, the concerned government employee suppose is suspended, any disciplinary proceeding is pending against the government employee, and the against the government employee prosecution of criminal proceeding is pending. So in that case actually other side DPC is there to it means decide about the promotion of the employee. So ये circumstances आ जाता है. आगे मैं बहुत अच्छा चीज मैं बताऊंगा. तो यहां पर देख लीजिए, फॉर द पर्पज ऑफ पेंडेंसी ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्ज, द डेफिनेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन क्रिमिनल केसेस गिवन. तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बेसिकली इन एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्ज, ये डिस्कस किया गया है. अब देखिए, आप यदि जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 उसका रूल नंबर 9 देखिए, सब सेक्शन 6, उसका बीट बी और बीट आई देखिए, इसमें डिफाइन किया गया है कि पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. और अभी जो न्यू आ गया सीसीएस पेंशन रूल्स, सीसीएस ओल्ड पेंशन रूल्स 2021, उसमें देख लीजिए रूल 8, रूल 1, रूल 8 सबसेक्शन 1 बी बीट आई. तो ये दोनों को याद कीजिए. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ऑन द डेट ऑन विच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ऑफ विच द मैजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्नाइजेंस इज मेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है, किस डेट से वो इफेक्ट होगा.
ना ऑन द डेट ऑन विच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर का कंप्लेंट है कि जो पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट है वो जब मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा और ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट का संज्ञान में आ जाएगा, तब उसी डेट से जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दिया गया है बेसिकली, आप देख लीजिए, मैं जो बताया इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, रूल नंबर 9 सबसेक्शन 6 बीट बी बीट आई। सिमिलरली रूल 8 of CCS pension rules 2021, it is modified in 2021, rule 8 subsection 1 bit B bit I। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो जिस डेट में पुलिस कंप्लेंट की पुलिस रिपोर्ट एक्चुअली बेसिकली कॉग्नाइज्ड बाय द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, फ्रॉम दिस डेट ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, राइट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट को देख लीजिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट, कंडीशन है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिकमेंडेड फॉर ए प्रमोशन बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, but in which case any of the circumstances mentioned above arises after the recommendations of the DPC are received but before he is actually promoted। यहां पर क्या है, ऑलरेडी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी हु इज रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन, ऑलरेडी वो रिकमेंड कर चुका है, जो कंसर्न एम्प्लॉय का प्रमोशन को रिकमेंड कर चुका है। ठीक है, और ये सर्कमस्टांसेस आ जाता है, जैसे द कंसर्न एम्प्लॉय इज सस्पेंडेड, कि एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, ये जो सर्कमस्टांसेस आ जाता है, ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द प्रमोशन, रिकमेंडेड बाय द डीपीसी, एंड दीज सर्कमस्टांसेस एक्चुअली अराइज्ड। नेक्स्ट वन, आफ्टर द रिकमेंडेशन, सो डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी वो रिकमेंड करने के बाद ये सर्कमस्टांसेस उसको पता होता है, मगर अभी कंसर्न एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है। डीपीसी रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन, ओके, बट बिफोर प्रमोशन एक्चुअली डीपीसी received the circumstances related to the above, like the concerned employee is suspended, any disciplinary proceeding is pending against the employee, and any criminal prosecution is pending against the employee. If these type of circumstances arise after recommendation of the DPC but before actual promotion, तो ये कंडीशन में क्या होगा, द रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी, तो ये कंडीशंस में क्या होगा, जो भी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया है तो वो सील्ड कवर में रहेगा। द रिकमेंडेशन गिवन बाय द डीपीसी रिलेटेड टू द प्रमोशन शुड नॉट बी एक्ट अपॉन, it should be kept in the sealed cover. The recommendations of DPC will be considered if his case had been placed in a sealed cover by the DPC. He shall not be promoted until he is completely exonerated of the charges against him. जो भी चार्जेस लगा है कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर, वो उसमें पूरा एक्जोनरेट ना हो जाए तब तक जो भी डीपीसी रिकमेंडेशंस लिया है प्रमोशन के ऊपर वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा, आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि ऑलरेडी डीपीसी रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन, देन आफ्टर रिकमेंडेशन डीपीसी रिसीव्ड सम सर्कमस्टांसेस एंड इट इज हैपेंड एक्चुअली प्रेसिडिंग ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। तो इस केस में व्हाट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन एक्चुअली गिवन बाय द डीपीसी, इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन, इट शुड बी केप्ट इन अ सील्ड कवर, okay, until it means the employee on whom actually the charge is imposed totally exonerated from the charge। जब तक वो जो चार्ज लगा है उससे मुक्त ना हो जाए तब तक वो सील्ड कवर में रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन को चलेंगे। ये प्रमोशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह होता है, तो ये द राइट टू बी कंसिडर्ड बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड ए पर्सन इज एलिजिबल एंड इज इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन। तो ये राइट है, जो प्रमोशन जो है ये एक राइट है, वो बेसिकली प्रमोशन डिफरेंट वेज में होता है, चाहे बाय सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, और नॉन सिलेक्शन मीन्स सीनियरिटी बेसिस में, तो इसको कोई मना नहीं कर सकता। ओके, ये आर्टिकल 16 में है, ये एक फंडामेंटल राइट की तरह है, और जो पर्सन एलिजिबल है वो जोन ऑफ कंसिडरेशन में रहेगा। ठीक है, और जो पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से उसको प्रमोशन मिलता जाएगा। तो यहां पर है
नेक्स्ट पॉइंट है द सील्ड कवर प्रोसीज्योर परमिट्स द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन टू बी केप्ट इन अवेयंस टिल द रिजल्ट ऑफ एनी पेंडिंग डिसिप्लिनरी। तो ये तो कॉमन चीज है। इफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग देन द रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी, जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी प्रमोशन के ऊपर जो भी डिसीजन लिया है वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा। ओके, जब जो चार्ज ऑफिसर है जिसके ऊपर ऑलरेडी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया है प्रमोशन रिलेटेड मैटर में, वो पूरा उसके ऊपर जो चार्ज लगा है उससे मुक्त ना हो जाए, इट इज फुल्ली द कंसर्न इट मीन्स द चार्ज ऑफिसर शुड बी फुल्ली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। ओके, जब जो चार्ज लगा है उससे मुक्त हो जाएगा तब वो सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा। ठीक है। The findings of the disciplinary inquiry exonerating the officers would have to be given effect to as they obviously relate back to the date on which the charges framed। ये भी बहुत अच्छा है। यदि वो जो चार्ज लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर जो भी चार्ज लगा है वो उससे मुक्त हो रहा है, वो इट मीन्स द on what type of charge actually imposed on the charged officer and the charged officer is completely exonerated from the charge, then obviously जिस डेट में चार्ज लगा था फ्रेम हुआ था उसी डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक्चुअली उसका प्रमोशन लागू होगा। ठीक है। द फाइंडिंग्स ऑफ द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एक्सोनरेटिंग द ऑफिसर्स वुड हैव टू बी गिवन इफेक्ट टू आज। तो ये तो कॉमन चीज है। तो कब से यदि कंसर्न ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगा है और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में इज टोटली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, तो ये जो पूरा मुक्त हो गया, कब से मुक्त होगा, कब से एक्चुअली इट मीन्स फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। तो इट मीन्स जिस डेट में उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ था उसी डेट से मान लिया जाएगा कि वो जो चार्ज लगा था वो मुक्त है। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट को चलेंगे। अनदर एक नोट है, द मियर फैक्ट दैट बाय द टाइम the disciplinary proceedings in the first inquiry ended in his favor and by the time the seal was opened to give effect to it another departmental inquiry was started by the department। ये कंडीशन है। क्या है? जो फर्स्ट इंक्वायरी था, बेसिकली जो फर्स्ट चार्ज लगा था, द कंसर्न एम्प्लॉई इज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज। जो भी चार्ज लगा था उसका फेवर में चला गया, चार्ज ऑफिसर के फेवर में। और जो भी डिपार्टमेंटल इट मींस डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो भी रिकमेंडेशन दिया था प्रमोशन के ऊपर वो तो सील्ड कवर में था। तो अभी सील्ड कवर ओपन होगा क्योंकि वो भी जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसके ऊपर चार्ज लगा था वो तो उससे मुक्त हो गया। मगर जब वो एंड बाय द टाइम द सील वाज ओपन टू गिव इफेक्ट टू इट, जब सील को ओपन किया जाएगा और जो भी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया है उसको इफेक्ट किया जाएगा, उस समय डिटेक्ट हुआ उसके ऊपर अनदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक ऐसा कंडीशन है। तो फर्स्ट इंक्वायरी चल रहा था उससे वो मुक्त हो गया और अभी जो सील्ड कवर में जो प्रमोशन रिलेटेड जो रिकमेंडेशन दिया है डीपीसी उसका इफेक्ट होगा, मगर उसी समय और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके ऊपर है। तो क्या होगा? तो इस केस में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अनदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो फर्स्ट इंक्वायरी था, जो यहां पर फर्स्ट इंक्वायरी था, फर्स्ट इंक्वायरी में जो चार्ज लगा था इससे वो मुक्त हो रहा है। तो इससे मुक्त हो रहा है मींस वो ऑटोमेटिकली इट मींस उसके ऊपर कोई उसका बेनिफिट जो फर्स्ट चार्ज लगा था उससे मुक्त हो रहा है मींस ये क्लियरली दे दिया, would not come in the way of giving him the benefit of the assessment by the first departmental promotion committee in his favor। तो इसमें क्या है, यदि फर्स्ट इंक्वायरी में वो एक्सोनरेट हो जाता है, ओके, फर्स्ट इंक्वायरी में एक्सोनरेट हो गया और उसका जस्ट सील कवर ओपन होगा, जो डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया है वो सील कवर में है उसका ओपन होगा और इफेक्ट होगा। उसी समय दिखाया गया कि और उसके ऊपर सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंक्वायरी में वो एक्सोनरेट हो गया मींस जो फर्स्ट डीपीसी जो डिसीजन लिया था, जो रिकमेंडेशन दिया था, वो जो सील कवर में था वो एक्चुअली बेनिफिट में जाएगा, चाहे सेकेंड इंक्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेकेंड इंक्वायरी बाद में हुआ ना। फर्स्ट इंक्वायरी जो हुआ एक पर्टिकुलर डेट से लागू हुआ, ओके, पर्टिकुलर डेट से जो भी
फास्ट डीपीसी जो भी डिसीजन रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में था, यदि वो कंसर्न एम्प्लॉय का फेवर में है, कंसर्न एम्प्लॉय के लिए वो लागू होगा, चाहे वो सेकेंड इंक्वायरी उसके ऊपर लागू हो, इट मींस इंपोज किया गया है। तो ये ध्यान देना है। इसके ऊपर भी और थोड़ा हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, मगर यहां पर याद कीजिए, यदि फास्ट इंक्वायरी जो चल रहा था और उसके ऊपर जो चार्ज लगा था इससे वो मुक्त हो रहा है, तो सील्ड कवर में जो भी रिकमेंडेशन दिया था डीपीसी वो उसका फेवर में जाएगा, चाहे उसके ऊपर सेकेंड चार्ज लगा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो फास्ट चार्ज से मुक्त हुआ, मीन्स जो फास्ट डीपीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो उसका फेवर में जाएगा, कंसर्न चार्ज ऑफिसर का फेवर में जाएगा, चाहे सेकेंड इंक्वायरी उसके ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। If by the time the seal was opened to give effect to the exoneration in the first inquiry, another departmental inquiry was started by the department against the government servant concerned। ये आ गया, जब फास्ट इंक्वायरी उसके ऊपर चल रहा था, अभी जो भी फास्ट जो चार्ज लगा था उससे वो एक्जोनरेट हो गया, मुक्त हो गया। अभी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में था। ठीक है, और जब सील्ड कवर ओपन होने जा रहा है उस समय उसके ऊपर एक सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है। तो इस केस में दिया है, दिस मीन्स दैट वेयर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड आफ्टर प्रमोशन ऑफ द जूनियर टू द गवर्नमेंट सर्वेंट concerned on the basis of the recommendation made by the DPC, which kept the recommendation in respect of the government servant in sealed cover, the benefit of the assessment by the first DPC। देखिए आंसर ये है, देखिए फास्ट इंक्वायरी चल रहा था और वो जो फास्ट इंक्वायरी चल रहा था उसी समय डीपीसी बैठा था, तो डीपीसी ने क्या किया, उसका रिकमेंडेशंस को सील्ड कवर में रख दिया। तो उस समय जब वो फास्ट इंक्वायरी से जो फास्ट चार्ज लगा था, जब वो उससे एक्जोनेट हो गया, मुक्त हो गया, तो उसी समय देखा गया कि और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है और एक चार्ज उसके ऊपर लगा है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है। मगर इस केस में क्या है, उस समय देखा गया कि आप जानते हो कि ये भी हो सकता है जब द कंसर्न एम्प्लॉय any departmental inquiry is going on against the government employee, and at that time actually DPC give recommendation related to the promotion, वो ये नहीं देखेगा कि आपके ऊपर क्या चार्ज लगा है, वो एज यूजुअल आपका जो चेक करेगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, यदि सिलेक्शन है तो आपका अप्राइजल को चेक करेगा, और यदि नॉन सिलेक्शन है तो आपका सीनियरिटी लेंथ ऑफ सर्विस को चेक करके जो भी रिकमेंडेशन देगा, मगर उस समय वो सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि अभी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, और उसी समय आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया। ठीक है, तो क्योंकि आपके ऊपर अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो आपके ऊपर जो डीपीसी रिकमेंडेशन दिया वो अभी सील्ड कवर में है, क्योंकि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है। तो इस केस में आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, मगर यह देखा गया कि आप जो फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए। ओके, द कंसर्न एम्प्लॉय एक्सोनरेटेड फ्रॉम द फास्ट चार्ज। तो जब फास्ट चार्ज से मुक्त हो गया तो उसका तो सील जो इट मीन सील्ड कवर में था, जो फास्ट डीपीसी का रिकमेंडेशन वो तो ओपन होगा, इफेक्ट होगा, और उस समय देखा गया उसके ऊपर एक सेकेंड चार्ज लगा है। मगर इसमें क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सेकेंड चार्ज लगा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए। तो यदि आप फास्ट चार्ज से मुक्त होते हो तो वो सील्ड कवर ओपन होगा और सील्ड कवर में जो रिकमेंडेशन है वो इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट मींस आपको प्रमोशन कब से दिया जाएगा ना, जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया था। ठीक है, जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन कर दिया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसमें सेकंड चार्ज चल रहा है, सेकंड चार्ज को छोड़ दीजिए, सेकंड चार्ज चल रहा है मगर आप फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए। तो फास्ट चार्ज जब आपके ऊपर लगा था उसी समय डीपीसी बैठा था और वो रिकमेंडेशन दिया था और वो सील्ड कवर में था, और अभी फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए मींस फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए मगर और एक चार्ज लगा है। तो मगर फास्ट चार्ज से आप मुक्त हो गए मींस फास्ट डीपीसी जो भी रिकमेंडेशन किया था वो इफेक्ट होगा, वो
कंसर्न चार्ज ऑफिसर के फेवर में जाएगा। और यदि कोई जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था, जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से नोशनल प्रमोशन आपको दिया जाएगा। और ये जो सेकंड चार्ज लगा है वो मॉडिफाई होगा और वो बेसिकली प्रमोशन पोस्ट के ऊपर जो भी है पेनल्टी लगेगा। तो वही दे दिया, द बेनिफिट ऑफ द असेसमेंट बाय द फर्स्ट डीपीसी विल बी एडमिसिबल। ये देख लीजिए, द बेनिफिट ऑफ द असेसमेंट बाय द फर्स्ट डीपीसी विल बी एडमिसिबल द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्जुरेशन इन द फर्स्ट इंक्वायरी विथ इफेक्ट फ्रॉम हिज डेट हिज इमीडिएट जूनियर वाज प्रमोटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फास्ट चार्ज लगा था और आपके ऊपर जो डीपीसी रिकमेंडेशन दिया था वो अभी सील्ड कवर में है, सील्ड कवर में था, और उसी समय आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया क्योंकि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा था। तो जब फास्ट चार्ज से आप मुक्त हो गए और उसी समय जब सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा और जो भी रिकमेंडेशन डीपीसी का था उसका इफेक्ट होगा, तो उस समय देखा गया आपके ऊपर और एक चार्ज लग गया है, ठीक है, और कोई एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है। मगर इसमें फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए मींस तो फर्स्ट डीपीसी जो भी रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में था, वो ओपन होगा और वो रिकमेंडेशन बेसिकली चार्ज ऑफिसर का फॉर्म में जाएगा। और यदि जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था, जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से कंसर्न चार्ज ऑफिसर को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, उसी डेट से ही मिलेगा। आप देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट हिज इमीडिएट जूनियर वाज प्रमोटेड, जिस डेट में जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर है उसका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड चार्ज लगा है प्रमोटेड पोस्ट के ऊपर लगेगा। जो सेकंड चार्ज लगा है वो प्रमोटेड पोस्ट, क्योंकि आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि जूनियर को प्रमोशन दिया गया था, जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से बेसिकली जिसके जो ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगा था उसका प्रमोशन हो जाएगा, नोशनल प्रमोशन हो जाएगा। तो अभी जो सेकंड चार्ज लगा, जो सेकंड चार्ज जब सील्ड कवर जो फास्ट चार्ज के ऊपर आप मुक्त हो गए और सील्ड कवर ओपन होने वाला है और उस समय देखा गया आपके ऊपर एक सेकंड चार्ज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एज यूजुअल प्रमोशन मिलेगा। बट प्रमोटेड पोस्ट के ऊपर ये जो सेकंड चार्ज लगा है उसके ऊपर इंक्वायरी होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा टिपिकल था, मैं अच्छे से उसको समझाया। चलो नेक्स्ट वन, द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग commenced after the subsequent proceeding commenced after the promotion of the junior results in the imposition of any penalty before the exoneration in the first proceedings। तो ये कंडीशन है, इसमें क्या है कि जो फास्ट चार्ज लगा था इस समय आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया था, ठीक है। द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स रिजल्ट्स इन द इंपोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी बिफोर द, तो जो फास्ट प्रोसीडिंग था, फास्ट प्रोसीडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कोई एक पेनल्टी आपके ऊपर लग गया, रिजल्ट्स इन द इंपोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी बिफोर द एक्सोनरेशन इन द फास्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के ऊपर है, ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स के ऊपर है। ये क्या है कि ऑलरेडी जो फास्ट प्रोसीडिंग चल रहा था उसी समय आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था और आप फास्ट प्रोसीडिंग से आप मुक्त नहीं हुआ है, मगर और एक पेनल्टी आपके ऊपर लग चुका है। तो उस केस में क्या होगा, सपोज इंपोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी बिफोर द एक्सोनरेशन इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग्स, तो इस केस में क्या होगा कि द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड इज प्रमोटेड रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोनरेशन द फर्स्ट। तो फास्ट प्रोसीडिंग में आप मुक्त हो गए, तो फास्ट प्रोसीडिंग से मुक्त हो गए मींस जिस डेट में, ठीक है, आपका बेसिकली जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये रेट्रोस्पेक्टिवली प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि फास्ट प्रोसीडिंग अभी इट मींस फास्ट प्रोसीडिंग के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है, मगर और एक पेनल्टी आपके ऊपर लग गया, यही बताए। फिर पेनल्टी जो सेकेंड पेनल्टी लगा, पेनल्टी लगने के बाद आप फास्ट प्रोसीडिंग जो चल रहा था उसमें आप मुक्त हो गए। तो इस केस में क्या होगा ना, फास्ट प्रोसीडिंग से मुक्त हो गए मींस ऑटोमेटिकली जो फास्ट डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में था, वो ओपन होगा और इफेक्ट होगा और वो आपका फेवर में जाएगा, जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर उसका फेवर में जाएगा। और इस केस में आपको याद रखना है कि जिस डेट में सपोज उसका जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से प्रमोशन होगा
और ये जो पेनल्टी लगा है, ये जो सेकेंड प्रोसीडिंग से जो पेनल्टी लगा है, वो पेनल्टी आपका प्रमोशन पोस्ट के ऊपर लगेगा। ये दे दिया, द पेनल्टी इम्पोज्ड मे बी मॉडिफाइड एंड इफेक्टेड विथ रिफरेंस टू प्रमोटेड पोस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेनल्टी लगा था वो पेनल्टी जो सेकेंड प्रोसीडिंग में जो पेनल्टी लगा था वो मॉडिफाई हो सकता है और वो प्रमोटेड पोस्ट के ऊपर ही इफेक्ट होगा। तो ये भी प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो इसमें ये भी एक अच्छा कंडीशन है, फास्ट प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुआ है। ओके, जो फास्ट प्रोसीडिंग में जो ऑफिसर के ऊपर जो चार्ज लगा था वो खत्म नहीं हुआ है, मगर उसके ऊपर और एक पेनल्टी लग गया, सेकेंड प्रोसीडिंग के ऊपर पेनल्टी लग गया। मगर उसके बाद देखा गया पेनल्टी जो सेकेंड प्रोसीडिंग में जो पेनल्टी लगा, उसके बाद वो फास्ट प्रोसीडिंग जो चल रहा था, जो फास्ट चार्ज था, उससे आप मुक्त हो गए। तो उस केस में क्या होगा, जो फास्ट चार्ज से मुक्त हो गए मीन्स यदि आपका जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया था जिस डेट में, उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा। और ये जो सेकेंड प्रोसीडिंग में जो पेनल्टी मिला, वो पेनल्टी बेसिकली आपका प्रमोशन पोस्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। चाहे वो जो पेनल्टी है वो मे बी मॉडिफाइड एंड मस्ट बी इफेक्टेड ऑन द प्रमोशन पोस्ट। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर फ्रॉम बिजनेस विजिलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर फ्रॉम विजिलेंस एंगल इन द केस ऑफ रिव्यू डीपीसी वेयर ए जूनियर हैज बीन प्रमोटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ओरिजिनल डीपीसी। तो क्या होता है कि आपका जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया है क्योंकि आप अभी कोई डिसिप्लिन प्रोसीडिंग सपोज पेंडिंग है, कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। In case of review DPC, where a junior has been promoted on the recommendations of original DPC, the official would be considered for promotion if he or she is clear from business। जो DPC का रिव्यू हुआ, ऑलरेडी आपका प्रमोशन, आपका जूनियर जो ऑफिसर था, आपसे जूनियर था, उसका प्रमोशन हो चुका है और अभी डीपीसी का रिव्यू हो रहा है। डीपीसी का रिव्यू में देखा गया कि आप के ऊपर विजिलेंस एंगल में विजिलेंस डिपार्टमेंट आपको क्लियरेंस दे दिया। ठीक है, अभी ऑलरेडी बेसिकली आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया है क्योंकि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग था। ये जो अभी रिव्यू हुआ, डीपीसी का रिव्यू हुआ, उसमें देखा गया कि आपका जूनियर को ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया है और आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट अभी क्लियरेंस दे दिया, विजिलेंस एंगल से अभी क्लियर है। तो ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, तो आपका जो प्रमोशन होगा, उस केस में प्रमोशन होगा। प्रमोशन किस डेट से होगा ना, जिस डेट में आपका जूनियर का प्रमोशन हुआ था उसी डेट में होगा। चाहे ये आपके ऊपर, चाहे ये जो है ना सर्कमस्टेंसेस, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, कि एनी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, कि एनी प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, चाहे ये हो, मगर विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपको क्लियरेंस दे दिया। जो भी सर्कमस्टेंसेस था, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो रिव्यू हुआ डीपीसी का, उसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे दिया। चाहे ये सर्कमस्टेंस है, अभी भी ये सर्कमस्टेंस है, मगर विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे दिया मींस तो ऑलरेडी आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया गया है। तो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोट किया गया है उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा। चाहे ये सर्कमस्टेंसेस, इवन इफ ये सर्कमस्टेंसेस है, मगर आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे दिया, तो ऑलरेडी आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया गया है। तो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोट किया गया था उसी डेट से ओके आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रमोशन मिलेगा। ठीक, तो ये नहीं मत सोचना जो विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे देता है मींस चाहे ये सर्कमस्टेंसेस है मगर फिर भी प्रमोशन मिलेगा। और कब से मिलेगा ना, जिस डेट में ऑलरेडी आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय डीपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड मीन सपोज एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, कि द गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज सस्पेंडेड, कि एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। तो इस केस में थोड़ा इसको देख लेते हैं। द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी शैल असेस द सुइटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, इसमें एक मजा बात है, चाहे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, कि कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, कि आप सस्पेंडेड हो, यदि आप
डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यहां पर वो नहीं देखेगा कि आपके ऊपर कौन सा इंक्वायरी पेंडिंग है, चाहे क्रिमिनल इंक्वायरी पेंडिंग है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग है कि आप सस्पेंडेड हो, वो नहीं देखेगा। एज यूजुअल जैसे अदर कैंडिडेट्स को देखता है कि जो जब टाइम आ जाता है प्रमोशन के लिए तो आपको वो देखेगा, ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी शैल असेस द सुइटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कमिंग विद इन द परव्यू ऑफ द। तो ये है जो सुइटेबिलिटी है, आप सपोज आपका टाइम आ गया, आपका प्रमोशन होगा तो डीपीसी डिसाइड करेगा, मगर यहां पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है कि कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, तो उसको डीपीसी कंसीडर नहीं करेगा, उसको विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, वो नहीं देखेगा, वो आपका सुइटेबिलिटी को जज करेगा। यदि आपके ऊपर कोई उसी समय ये इस तरीका का पेंडिंग है केस, चाहे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तब वो जो डीपीसी जो रिकमेंडेशन देगा वो सील्ड कवर में रहेगा, इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन। समझ में आ रहे, जो रिकमेंडेशन है वो सील्ड कवर में रहेगा जब तक आप मुक्त ना हो जाए जो भी चार्ज लगा है। मगर जब डीपीसी आपका सुइटेबिलिटी के हिसाब से, जब डीपीसी आपका प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, तब वो ये जो चाहे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा, वो एज यूजुअल रिकमेंडेशन दे देगा और इस साइड में देखेगा कि आपके ऊपर पेंडिंग है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो वो क्या करेगा, उसको सील्ड कवर में रखेगा, ठीक है, जब तक आप मुक्त ना हो जाए जो भी चार्ज लगा है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर ऐसे होता है कंडीशन द असेसमेंट ऑफ डीपीसी इंक्लूडिंग, सपोज आप अनफिट, वो तो एक रिमार्क देगा ना, सपोज अनफिट फॉर प्रमोशन एंड द ग्रेडिंग अवॉर्डेड बाय इट, तो ये जो भी है, सपोज आप प्रमोशन के लिए अनफिट हो, वो जो भी रिकमेंडेशन देगा, ऐसे रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग जो भी रिकमेंडेशन देगा कि आपका प्रमोशन होगा इसी पोजीशन में, और यदि आप प्रमोशन के लिए अनफिट हो वो भी लिखेगा, और जो भी आपको ग्रेड दिया है वो भी अवार्ड करेगा, मगर सब वो सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है। मगर ये नहीं कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और डीपीसी आपके ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। डीपीसी एज यूजुअल जैसे अदर कैंडिडेट्स को जज करेगा, आपको जज करेगा और रिकमेंडेशंस देगा, और मगर वो सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि डिसिप्लिनरी पेंडिंग है, कि क्रिमिनल कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो आपके ऊपर कोई डिसीजन की आपको जज नहीं किया जाएगा कि आपको इट मींस आप सुइटेबिलिटी हो मगर फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो द कवर विल बी सुपरस्क्राइब्ड फाइंडिंग्स रिगार्डिंग सुइटेबिलिटी फॉर प्रमोशन टू द ग्रेड और पोस्ट ऑफ, ये पोस्ट का नाम, जो जिस पोस्ट में आप प्रमोशन होने वाले हो आपका नाम, ओके, सो ये ओपन है, नॉट बी ओपन, ओके, टिल द टर्मिनेशन ऑफ द, तो वो ये लिख रहा है, तो वो ये लिख रहा है कि अभी जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए, चाहे वो डिसिप्लिनरी केस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ये टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक ये जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो सील कवर में रहेगा। तो ऐसे एक फॉर्मेट होता है, ये एक फॉर्मेट है, ओके, वो फाइंडिंग्स रिगार्डिंग सुइटेबिलिटी फॉर प्रमोशन टू द ग्रेड और पोस्ट ऑफ, तो इससे कवर होता है, ठीक है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट, और यहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू फिल द वैकेंसी शुड बी सेपरेटली एडवाइज टू फिल द वैकेंसी। सपोज अभी जैसे कंसर्न जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर जो डीपीसी रिकमेंडेशन दिया प्रमोशन के लिए, वो अभी सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो इस केस में जो अथॉरिटी चाहता है कि इट मींस वो वैकेंसी को फिल करेगा। सपोज आप अभी प्रमोट हो जाते मगर अभी प्रमोट नहीं हो पाए, जो भी डिसीजन लिया है वो सील्ड कवर में है, तो आपका जगह भी वैकेंट है, तो उसके ऊपर जब जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जब वो उसको फिलअप करने के लिए जाएगा, वो सेपरेटली उसको एडवाइज किया जाएगा। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू फिल द वैकेंसी should be separately advised to fill the vacancy in the higher grade only in an officiating capacity when the findings of the DPC in respect of the suitability of a government servant for this promotion are kept in a sealed cover। तो वो सेपरेटली उसको एडवाइज किया जाएगा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि आप सेपरेटली उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप उसका जूनियर ऑफिसर को आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑफिसर प्रमोशन होना था उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है और जो भी रिकमेंडेशंस डीपीसी लिया है अभी सील्ड कवर में है,
तो वो सेपरेटली एक एडवाइस दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि वो पोस्ट को आप फिलअप करोगे और एक जूनियर ऑफिसर को आप चूज करके प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट, प्रोसीजर बाय सब्सिक्वेंट डीपीसीज। तो सब्सिक्वेंट डीपीसी वही है, फिर आपका अभी जो सपोज इसी ईयर का डीपीसी अभी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो जो भी रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में है, तो नेक्स्ट ईयर फिर डीपीसी जब बैठेगा वो नॉर्मल वही प्रोसीजर है, वो फिर आपको कंसिडर करेगा और आपका सुइटेबिलिटी देखेगा। वो यहाँ पर नहीं देखेगा कि आपका ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो एज यूजुअल वही डिसीजन लेके फिर वो सील्ड कवर में रखेगा। तो वही प्रोसेस चलता जाएगा। द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज convened till the disciplinary case or criminal prosecution against the government servant concerned is concluded। ठीक है, तो सेकंड जो डीपीसी नेक्स्ट ईयर बैठेगा वो भी वैसा ही प्रोसीजर इट मींस फॉलो करेगा, राइट। एक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये भी थोड़ा देख लेंगे। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन व्हिच रिजल्ट्स इन ड्रॉपिंग ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट, सपोज जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो एलिगेशन था वो ड्रॉप हो गया, इट मींस आप उससे मुक्त हो गए, एक्सोनरेट हो गए। तो इस केस में द सील्ड कवर और कवर शैल बी ओपन। जो सील्ड कवर में डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया था आपका प्रमोशन के ऊपर, वो सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड, यदि आप कंप्लीटली मुक्त हो जाते हो तो प्रमोशन जो है कौन सा ड्यू डेट से इफेक्ट होगा, द ड्यू डेट ऑफ हिज प्रमोशन विल बी डिटरमाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेट ऑफ प्रमोशन कैसे वो डिटरमाइन होगा, एक है जो डीपीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था, आपको जो पोजीशन दिया था कि उसमें मेंशन किया था कि उसी डेट से उसका प्रमोशन होगा विथ रिफरेंस टू द पोजीशन असाइन टू हिम इन द फाइंडिंग्स केप्ट इन द सील्ड कवर और कवर्स। जो डीपीसी ने रिकमेंडेशन दिया था वो अभी सील्ड कवर में था, आपको जो पोजीशन दिया था तो उसके हिसाब से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, एक है। सेकंड है, यदि आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया है, यदि आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया है आपका पोस्ट के जगह में, तो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया है उसी डेट से आपका प्रमोशन होगा। एंड सेकंड वन विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज नेक्स्ट जूनियर ऑन द बेसिस ऑफ सच पोजीशन। तो ये दो चीज आता है यहां पर। जो मेन चीज है, यदि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा था कि कोई जो डिसिप्लिनरी केस चल रहा था वो भी ड्रॉप हो गया और आप कंप्लीटली एक्सोनरेट हो गए, तो कौन सा डेट से आपका प्रमोशन इफेक्ट होगा। तो मेन दो चीज आपको याद रखना है। जो यहां पर फर्स्ट चीज है, जो डीपीसी ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो सील्ड कवर में था, वो उसका जो फाइंडिंग्स था उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, वो भी एक कोई डेट मेंशन किया होगा आपका पोजीशन के हिसाब से। सेकंड वन, यदि आपका जूनियर, आपका जगह में आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया था, तो जिस डेट में आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपका प्रमोशन होगा। तो ये दो रेफरेंस को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो रेफरेंस को आपको याद रखना है, ये एक है और सेकेंड वन ये है। ठीक है, जूनियर ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। तो दोनों को थोड़ा आप अच्छे से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट सर्वेंट में बी प्रमोटेड इफ नेसेसरी बाय, ये भी हो सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रमोशन कर दिया जाएगा, जो जूनियर ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया था उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा उसको, क्योंकि ऑफिशिएटिंग के हिसाब से दे दिया गया था, जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया था। तो यदि आप पूरा एक्सोनरेट हो गए, ठीक है, अभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। मैं बार बार बताया, जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से होगा। मगर यदि आपका जूनियर को ऑफिशिएटिंग के आकार में दिया गया था, टेम्पोररी के आकार में दिया गया था, तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, उसका पेरेंट पोस्ट को रिवर्ट कर दिया जाएगा और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और यह है, बहुत कॉमन है, ही मे बी प्रमोटेड नोशनली विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज जूनियर। जो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा। यदि आप जो चार्ज आपके ऊपर लगा है आप फुल्ली एक्सोनरेट हो जाते हो, पूरा मुक्त हो जाते हो, तो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, however whether the officer concerned will be entitled to any arrears। अच्छा, एरियर का बात आता है।
यदि आपका एरियर का बात आ जाता है, आपको नोशनल प्रमोशन मिला, तो नोशनल प्रमोशन मीन्स आपका जूनियर ऑफिसर को जिस डेट में प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से आपको प्रमोशन दिया जाएगा, तो आपको एरियर मिलेगा। तो प्रेसिडिंग द डेट ऑफ एक्चुअल प्रमोशन, अभी जो एक्चुअल प्रमोशन मिला प्रेसिडिंग डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपको प्रमोशन मिलेगा। तो आपको यदि वो एरियर मिलेगा एंड डू सो टू हार्ट एक्सटेंट will be decided, it is actually decided by the appointing authority by taking into consideration all the facts and circumstances of the disciplinary proceeding or criminal prosecution। ठीक है, तो यहां पर मजा बात है। तो यदि फुल्ली एक्सोनरेट हो गए तो बेसिकली अभी हम बताया कि दो चीज है। एक है यदि आपके जगह में जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन कर दिया गया था, तो जिस डेट में जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा, तो वो नोशनल प्रमोशन हो गया। तो इस केस में आपको एरियर मिल सकता है। नहीं तो जो डीपीसी का फाइंडिंग था, डीपीसी एक आपको पोजीशन दिया था तो उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा। तो ये जो एरियर के ऊपर आपको एरियर मिलेगा कि नहीं, वो एक्चुअली डिसाइड कौन करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिनाइज एरियर्स, यदि मना कर देता है कि नहीं आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा, वो रीजन भी मेंशन करेगा कि किस कारण से आप तो मुक्त हो गए और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपका प्रमोशन होगा, तो फिर भी क्यों एरियर नहीं मिलेगा? यदि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मना कर देता है, डिनाई कर देता है, वो रीजन देगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denials of arrears of salary or a part of it may become necessary। तो यहां पर क्या है, जैसे आप पूरा एंटिसिपेट नहीं कर सकते, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो एक्चुअली फैक्ट्स को देखेगा, सर्कमस्टांसेस को देखेगा। तो उसको देखने के बाद चाहे जो एरियर मिलेगा आपको फुल एरियर मिलेगा कि पार्ट मिलेगा कि आपको एरियर नहीं मिलेगा, वो एक्चुअली एक रीजन के साथ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और इफ ही इज फाउंड गिल्टी इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम, द फाइंडिंग्स ऑफ द सील्ड कवर और कवर शैल नॉट बी एक्टेड अपॉन। His case for promotion may be considered by the next DPC in the normal course and having regard to the penalty imposed on him। तो ये तो कॉमन चीज है। जैसे यदि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा था, कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उसी समय डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया था वो तो सील्ड कवर में है, तो सील्ड कवर में जो रिकमेंडेशन दिया था वो एक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सील्ड कवर में रहेगा। यदि वैसा ही एज यूजुअल मैनर क्या है, नेक्स्ट डीपीसी को बजाएगा, नेक्स्ट डीपीसी एज यूजुअल वही होगा, आपका सुइटेबिलिटी को देखकर रिकमेंडेशन दे देगा और वो सील्ड कवर में रहेगा, क्योंकि अभी तक भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट है कि आपके ऊपर पेनल्टी लग गया है। अभी जब सेकंड डीपीसी बैठा तब आपके ऊपर पेनल्टी लग चुका है। पेनल्टी लगा है मींस तभी भी जो सील्ड कवर में है, जो सेकंड डीपीसी जो डिसीजन लेगा, रिकमेंडेशन दे देगा आपका प्रमोशन के ऊपर, वो भी सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि आपके ऊपर अभी पेनल्टी लगा है। ठीक है, तो जब पेनल्टी लगा, आपको याद है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, डीपीसी रिकमेंडेशन दिया, वो सील्ड कवर में रहेगा। और जब सेकेंड डीपीसी को गया तब आपके ऊपर कोई पेनल्टी, क्योंकि एक्चुअली अल्टीमेटली द कंसर्न ऑफिसर इज द कन्विक्ट, सो अल्टीमेटली उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। और जब पेनल्टी लगेगा तब एज यूजुअल वो पेनल्टी को नहीं देखेगा, सेकंड डीपीसी आपका सुइटेबिलिटी को देखकर रिकमेंडेशन दे देगा प्रमोशन, मगर वो सील्ड कवर में रहेगा क्योंकि अभी पेनल्टी पीरियड चल रहा है। ठीक है, however there may be cases where the proceedings whether disciplinary criminal or for example, अच्छा कब आपका डेनियल ऑफ एरियर, जैसे आपको मुक्त कर दिया गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपको प्रमोशन मिल गया, तो आपको एरियर मिलना चाहिए, मगर अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है। किस केस में? सपोज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोल रहा है कि ये जो डिले हुआ एम्प्लॉय के वजह से हुआ, अभी तक जो डिसीजन अल्टीमेटली डिसीजन हुआ और वो मुक्त हो गया, मगर वो एम्प्लॉय के वजह से केस थोड़ा डिले हुआ, इसके वजह से एरियर नहीं मिलेगा। कि द क्लियरेंस इन द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से जो क्लियरेंस के वजह से आपको एरियर नहीं मिलेगा। कि जो आपको अक्विट कर दिया गया, अक्विटल इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो बेनिफिट ऑफ डाउट है। कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस नहीं मिला क्योंकि वो पर्टिकुलरली एम्प्लॉय की वजह से वो कुछ प्रेशराइज किया और उसके वजह से कुछ एविडेंस नहीं मिला, तो इसके वजह से आप अल्टीमेटली एक्सोनरेट हो गए, मगर आपको एरियर नहीं दिया जाएगा।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इस तरह का सर्कमस्टांसेस में चाहे आप मुक्त हो गए, मगर इस तरीके का सर्कमस्टांसेस में आपको जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रमोशन होगा। कैसे ना, जो डीपीसी जो फाइंडिंग दिया था वो एक डेट दिया था कि पोजीशन दिया था, उसके हिसाब से हो सकता है, और जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपका नोशनल प्रमोशन होगा। तो मगर आपको एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब सर्कमस्टांसेस के वजह से, ये सब फैक्ट्स के वजह से आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एरियर देने के लिए मना करेगा और ये रीजन भी दे देगा। ठीक है। 6 मंथली रिव्यू ऑफ सील्ड कवर केसेस। तो एवरी 6 मंथ में वो रिव्यू होना चाहिए, आपका जो सील्ड कवर है उसका रिव्यू होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मंथ्स में रिव्यू होगा। इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन instituted against any government servant is not unduly prolonged, and all efforts to finalize expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the case of a government servant in a sealed cover is limited to the various minimum। तो ये कॉमन चीज है। एवरी 6 मंथ पीरियड में जो सील्ड कवर है उसका रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि वो जैसे जो भी आपके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है वो लेट नहीं होगा। ठीक है, उसको यूजुअल मैनर आप जानते हो, जब मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट दे देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ठीक है, तो 6 मंथ्स में ये सील्ड कवर के ऊपर रिव्यू होगा। ओके। यदि मजा बात है कि प्रोसीडिंग खत्म हो गया, आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, जब तक पेनल्टी रहेगा तब तक वो सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। जो पेनल्टी पीरियड रहेगा, माने प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सील्ड कवर में रहेगा, जो भी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया है आपका प्रमोशन के ऊपर। उसके बाद आपको, आप गिल्टी हो गए, आप कन्विक्ट हो गए और आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, तो पेनल्टी पीरियड में भी वो सील्ड कवर में रहेगा। यदि पूरा आप एक्सोनरेट हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, कि आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाता है, तब वो सील्ड कवर ओपन होगा और इफेक्ट होगा। तो ये जो रिव्यू होता है बेसिकली सील्ड कवर 6 मंथली होता है। ठीक है, चलो। It has there been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of government servants whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of 6 months from the। अच्छा, ये जो 6 months है कब से ना, फ्रॉम द डेट ऑफ ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। ये है in a sealed cover on the expiry of 6 months from the date of convening the first departmental promotion committee। जो फर्स्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जब जो रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, प्रमोशन के ऊपर, उसी से 6 मंथ काउंट होगा, उसी से 6 मंथ काउंट होगा। 6 मंथ के बाद वो फिर रिव्यू होगा, जो भी रिकमेंडेशंस जो डीपीसी दिया था और वो सील्ड कवर में है उसका रिव्यू किया जाएगा, which has adjusted the suitability and kept its findings in the sealed cover। तो ये जो रिव्यू होगा एवरी 6 मंथ्स में सील्ड कवर को रिव्यू किया जाएगा। मगर आपको याद रखना है, जब तक आप जो भी चार्ज लगाए उससे मुक्त ना हो जाए तब तक सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। पेंडिंग तो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उसमें तो सील्ड कवर में रहेगा, और आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, जब पेनल्टी पीरियड के अंदर भी सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। पूरा पेनल्टी, सपोज पेनल्टी लग गया, पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद ही वो सील्ड कवर ओपन होगा। ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडहॉक प्रमोशन सिचुएशन देखिए, एडहॉक प्रमोशन केस पे इन स्पाइट ऑफ द 6 मंथली रिव्यू देयर मे बी सम केसेस वेयर द डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कंक्लूडेड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years। माने एवरी 6 मंथ्स में रिव्यू होगा, ओके, जो सील्ड कवर में है। और ये भी देखा गया 2 years हो चुका है मगर वो कंक्लूड नहीं हो रहा है, जो डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द फर्स्ट डीपीसी। तो ये जो 2 years हम ले रहे हैं, जो फर्स्ट डीपीसी बैठा था उससे 2 years हम ले जाएंगे, फिर भी आपका कंक्लूड नहीं हुआ है ये डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो तब तक तो वो सील्ड कवर में रहेगा। तो जब 2 years खत्म हो जाता है तो एडहॉक प्रमोशन कब होगा? इन सच ए सिचुएशन the appointing authority may review the case of the government servant provided he is not under suspension। माने देखिए, फास्ट डीपीसी से 2 years हो गया मगर फिर भी वो कंक्लूड नहीं हुआ है, जो भी डिसिप्लिनरी केस और जो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस, चाहे आप उसमें गिल्टी हो गए कि कन्विक्ट हो गए और आपका पेनल्टी पीरियड चल रहा है, तो सील्ड कवर तो ओपन नहीं होगा। ऐसे
2 इयर्स के बाद, तो 2 इयर्स जो काउंट करेंगे बेसिकली कब से काउंट करेंगे ना, वो जो काउंट होगा बेसिकली फ्रॉम द फास्ट डीपीसी, फ्रॉम द फास्ट डीपीसी। तो मगर उस समय तो आप तो सस्पेंशन में नहीं हो, क्योंकि पेंडिंग हुआ और आपके ऊपर पेनल्टी लगा, पेनल्टी पीरियड चल रहा है। तो ऐसे आपका जो फास्ट डीपीसी बैठा था और सील कवर में ऐसे 2 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो 2 इयर्स के बाद वो ऐसा कुछ चीज को देखेगा और आपको अडॉक प्रमोशन दे सकता है। ठीक है, टू कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ गिविंग अडॉक प्रमोशन कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक है कि वेदर द प्रमोशन ऑफ द ऑफिसर विल बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ये देखेगा कि जो आपको प्रमोशन दिया जा रहा है क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, कि बेसिकली जो चार्जेस आपके ऊपर लगा था वो बहुत ग्रेव था, वो हाई इंटेंसिटी का केस था, तो इसलिए आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये एक है। कि थर्ड वन है कि वेदर देयर इज एनी लाइक्लीहुड ऑफ द केस कमिंग टू ए कंक्लूजन इन द नियर फ्यूचर, whether the delay in the finalization of proceedings departmental or in a court of law is not directly or indirectly attributable to the government servant concerned, whether there is any likelihood of misuse of official position which the government servant may occupy after ad hoc promotion which may adversely affect the conduct of the departmental case or criminal prosecution। तो ये सब कुछ conditions को analyze किया जाएगा। तब फिर यदि वो 2 इयर्स हो जाता है फ्रॉम द फास्ट डीपीसी से 2 इयर्स हो गया मगर वो केस कंक्लूड नहीं हुआ है, तो चाहे प्रोसीडिंग डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग था उसमें आप गिल्टी हो गए और पेनल्टी पीरियड चल रहा है, तब तो सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। तो बेसिकली 2 इयर्स के बाद ये सब डिसाइड किया जाएगा। क्या यदि आपको प्रमोशन होगा उसके अगेंस्ट में कोई पब्लिक इंटरेस्ट, सपोज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट की ऐसा जो चार्ज लगा था बहुत ग्रेव था, तो इस केस में आपको प्रमोशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, कि इट मींस वेदर द डिले इन द फाइनलाइजेशन प्रोसीडिंग, सपोज ऐसा भी एक कंडीशन है कि जो डिले हुआ वो आप एम्प्लॉय के वजह से नहीं है, जो चार्ज ऑफिसर के वजह से नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आर्ट ऑफ प्रमोशन आपको दे दिया गया, फिर आपका ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करके जो डिपार्टमेंटल केस है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो उसके ऊपर जो कंडक्ट था उसको एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है, ये सब कंडीशंस को आप अच्छे से देख लो, ये कंडीशंस को स्टडी किया जाएगा, ये कंडीशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी शुड आल्सो कंसल्ट द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन and take their views into account where the departmental proceedings or criminal prosecution arose out of the investigations conducted by the bureau। Suppose CBI केस कर रहा है तो CBI के साथ भी कंसल्ट करेगा, यदि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो एक्चुअली केस को परस्यू कर रहा है। तो ऐसे तो यहां पर दे दिया कि इन केस the appointing authority comes to a conclusion that it would not against the public interest to allow ad hoc promotion to the government servant। तो ऐसे यदि बोर्ड डिसाइड करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कि यदि उसको आडॉक मींस टेम्पररी प्रमोशन, आडॉक प्रमोशन दिया जाएगा, उसमें कोई इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो हिज केस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट डीपीसी हेल्ड इन द नॉर्मल कोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 2 इयर्स। तो 2 इयर्स फास्ट डीपीसी से आप 2 इयर्स ले जाओ, उसके बाद भी डिसिप्लिनरी केस वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो ये सब कंडीशन है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखा कि इट इज नॉट अगेंस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इफ आडॉक प्रमोशन इज गिवन इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर जो नेक्स्ट डीपीसी आएगा 2 इयर्स के बाद वो फिर एक्चुअली सर्कमस्टांस को और फैक्ट्स को स्टडी करेगा। ओके, और उसके हिसाब से आपको आडॉक प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो अभी भी जो डिसिप्लिनरी केस है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो कंक्लूड नहीं हुआ है। Where the government servant is considered for ad hoc promotion, the departmental promotion committee should make its assessment on the, तो जो 2 इयर्स के बाद, 2 इयर्स मींस फास्ट डीपीसी बैठा तो 2 इयर्स ऐसे चलता रहा, वो बहुत लॉन्ग हो गया, 2 इयर्स के बाद ओनली भी केस कंक्लूड नहीं हुआ है, मगर यदि आपको ad hoc प्रमोशन दिया जाएगा उसके अगेंस्ट में कोई पब्लिक, इट मींस इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, तो इस केस में फिर जो 2 इयर्स के बाद जो डीपीसी आएगा वो एक्चुअली आपका टोटल रिकॉर्ड ये दे दिया, टोटलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड ऑफ सर्विस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द पेंडिंग डिसिप्लिनरी केस और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो आपका टोटल रिकॉर्ड को चेक करेगा, ये नहीं चेक, ये सब चेक नहीं करेगा कि जो डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है उसको नहीं देखेगा, वो आपका टोटल रिकॉर्ड को देखेगा। टोटल रिकॉर्ड के हिसाब से
आपको अडॉक प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर ए डिसीजन इज टेकन टू प्रमोट ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एन अडॉक बेसिस एन ऑर्डर ऑफ प्रमोशन मे बी इशूड मेकिंग इट क्लियर इन द ऑर्डर इटसेल्फ। तो उसके बाद ऑर्डर, तो एक ऐसे एक अडॉक प्रमोशन का भी व्यवस्था है। तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा, जो फर्स्ट डीपीसी बैठा था उसका 2 इयर्स के बाद यदि फिर भी डिसिप्लिनरी केस की कोई क्रिमिनल केस अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है, तो जो 2 इयर्स के बाद जो डीपीसी है वो बेसिकली जो चार्ज ऑफिसर का टोटल रिकॉर्ड देखेगा। वो ये जो क्रिमिनल केस पेंडिंग है कि डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है उसको वो असेस नहीं करेगा, वो आपका टोटलिटी रिकॉर्ड को असेस करेगा और आपको एडहॉक प्रमोशन दे देगा। ठीक है, और द प्रमोशन इज बीइंग मेड ऑन, आप जानते हो एडहॉक मींस ओनली टेम्पररी बेसिस में। ओके, ये नहीं है कि रेगुलर प्रमोशन आपका हो गया। और द प्रमोशन shall be until for further orders. It's also be indicated in the orders that the government reserves the right to cancel. आपका ad-hoc promotion भी वो कैंसिल कर सकता है क्योंकि टेम्पररी प्रमोशन है। ठीक है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा एक ad-hoc प्रमोशन है, एक टेम्पररी प्रमोशन है, फर्दर ऑर्डर्स तक आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया और कोई भी टाइम में आपका ad-hoc प्रमोशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट कैंसिल कर सकता है। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया है और आप पूरा केस से एक्विट हो गए। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड इज एक्विटेड इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस और इज फुल्ली एक्सोनरेटेड इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, तो इसमें क्या होगा, तो ऑलरेडी फर्स्ट डीपीसी 2 इयर्स चला गया, 2 इयर्स के बाद आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया, मगर फिर ad-hoc प्रमोशन देने के बाद आप पूरा क्रिमिनल केस से आप एक्विट हो गए, आप पूरा मुक्त हो गए, तो जो आपको ad-hoc प्रमोशन दिया गया था वो रेगुलर प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, वो जो ad-hoc प्रमोशन था वो रेगुलर प्रमोशन होगा। नेक्स्ट वन, इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड हैव नॉर्मली गॉट, नेक्स्ट वन देखिए, इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड हैव नॉर्मली गॉट हिज रेगुलर प्रमोशन from a date prior to the date of his ad-hoc promotion with reference to his placement in the DPC proceedings kept in the sealed cover and the actual date of promotion of the person ranked immediately junior to him by the same DPC, he would also be allowed his, ये दे दिया गया, जो ad-hoc जो रेगुलर होगा उसमें क्या होगा कि आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था, अभी आप फर्स्ट डीपीसी 2 इयर्स खत्म हो गया, 2 इयर्स के बाद जो क्रिमिनल केस है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया, उसके बाद आप क्रिमिनल केस से एक्विट हो गए, कंप्लीटली एक्सोनरेट हो गए, तो आपको रेगुलर प्रमोशन दे दिया जाएगा। मगर कब से, यदि आपका जूनियर को, जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन किया गया था आपका जूनियर को, उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा और आपका सीनियरिटी भी रहेगा, आपका सीनियरिटी रहेगा और आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा। तो जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा और आपका सीनियरिटी वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट एक्विट नहीं होता है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एक्विटेड ऑन मेरिट्स इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बट प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स एंड गवर्नमेंट आइदर प्रपोजेस टू टेक अप द मैटर, अच्छा सपोज आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया है मगर आप एक्विट नहीं हुए, कि अभी गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट फिर प्रपोज कर रहा है आप हायर कोर्ट को जाने के लिए, और कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आपके ऊपर फिर चलेगा, तो इस केस में आपका ad-hoc प्रमोशन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे जो क्रिमिनल केस था 2 इयर्स के बाद, फर्स्ट डीपीसी 2 इयर्स हो गया, फिर भी क्रिमिनल केस चल रहा है आपके ऊपर, सपोज आपको ad-hoc प्रमोशन दे दिया गया और सपोज आपको एक्विट नहीं किया गया, कि गवर्नमेंट अभी प्रपोज किया कि हायर कोर्ट को जाने के लिए, कि आपके ऊपर कोई अगेन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला, तो इस मैटर में आपका ad-hoc प्रमोशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सोनरेटेड आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसमें क्या है, रिटायरमेंट के बाद आप एक्सोनरेट हो गए, मुक्त हो गए। रिटायरमेंट के पहले आपका कोई प्रमोशन पीरियड था मगर उस समय आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग था, कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो पेंडिंग था, मगर रिटायरमेंट के बाद आप एक्सोनरेट हो रहे हो, तो इस केस में बेसिकली ये है, तो आप रिटायरमेंट के बाद एक्सोनरेट हो रहे हो मींस मुक्त हो रहे हो मींस
वो आपको देखा जाएगा कि जिस डेट में, ठीक है, आपको नोशनल प्रमोशन तो मिलेगा, क्योंकि सपोज जिस डेट में सपोज जो फाइंडिंग्स था डीपीसी का, जो फाइंडिंग्स जो पोजीशन के हिसाब से था, उसी से आपको प्रमोशन मिलेगा। कि आपको जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया था, तो जिस डेट में जूनियर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपका नेशनल प्रमोशन होगा, और आपको एरियर्स भी मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका पेंशन भी अगेन फिक्स होगा। ठीक है कि नहीं? तो वही दिया है, इन सच केसेस नेशनल प्रमोशन एंड पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पे इफ एनी फॉर द पीरियड ऑफ नेशनल प्रमोशन, ये सब मिल जाएगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, टू सच ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इफ फाउंड फिट ऑन ओपनिंग ऑफ द सील्ड कवर इज टू बी डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसमें कोई नहीं, आप रिटायरमेंट के बाद आप मुक्त हो रहे हो, एक्सोनरेट हो रहे हो, जो आपके ऊपर चार्ज लगा था। तो बेसिकली आपको नेशनल प्रमोशन मिलेगा, और आपको जो एरियर्स मिलेगा अप टू द रिटायरमेंट मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका पेंशन भी फिक्स होगा। ठीक है, तो ये है रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई who is considered for national promotion from the date of promotion of his next junior after opening of the sealed cover would also be entitled to fixation of pension on the basis of such national pay on his national promotion। तो ये क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप मुक्त हो रहे हो, मीन्स जो भी चार्ज लगा था, तो जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपको प्रमोशन मिलेगा, और उसी डेट से आपको नेशनल प्रमोशन मिलेगा, एरियर मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका जो पेंशन फिक्स होगा, क्योंकि अभी आपको नेशनल प्रमोशन मिल गया, उसके हिसाब से आपका पेंशन फिक्स होगा। ठीक है, इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्विटेड बाय ट्रायल कोर्ट बट एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट इज आइदर कंटेम्पलेटेड और हैज बीन फाइल्ड। ये याद रखिए, सपोज आप एक्विट हो गए मगर फिर हायर कोर्ट में अपील कर दिया गया, तब भी आपका सील को ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोअर कोर्ट में एक्विट हो गए मगर फिर कोई हायर कोर्ट को चला गया, अपील कर दिया हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट में अपील कर दिया मींस वो सील्ड कवर तब तक ओपन नहीं होगा। तो ये दे दिया, वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ डीपीसी हैज बीन केप्ट इन सील्ड कवर solely on account of pendency of the criminal case, the sealed cover may be opened in case of acquittal of the government servant। तो सील्ड कवर, जब आप एक्विट हो गए तो आपका सील्ड कवर ओपन होगा, प्रोवाइडेड दैट इट हैज नॉट बीन स्टेड बाय सुपीरियर कोर्ट। कोई सुपीरियर कोर्ट को चला गया, सपोज अभी लोअर कोर्ट में था, अभी लोअर कोर्ट में था, तो लोअर कोर्ट से आप एक्विट हो गए, और जब एक्विट हो गए और कोई हायर कोर्ट को चला गया, ठीक है, हायर कोर्ट को चला गया, हायर कोर्ट उसको स्टे कर दिया, तब वो सील्ड कवर ओपन नहीं होगा। इसको याद रखना है। लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट आपको एक्विट कर दिया, मगर इसी समय और कोई हायर कोर्ट को चला गया और हायर कोर्ट उसको स्टे कर दिया, हायर कोर्ट स्टे नहीं करेगा तो आपका सील्ड कवर ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हायर कोर्ट चले गए, हायर कोर्ट उसको स्टे कर दिया, फिर वो सील्ड कवर वैसा ही रहेगा, ओपन नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। इन द ऑर्डर ऑफ प्रमोशन ए मेंशन, प्रमोशन में मेंशन होता है, मेंशन में भी हैव मेड दैट द प्रमोशन इज प्रोविजनल। जो प्रमोशन ऑर्डर मिलेगा उसमें प्रोविजनल होगा, क्योंकि कभी भी अपील हो सकता है, कभी भी आप जो एक्विट हो गए उसके अगेंस्ट में कोई अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। तो आपको यदि प्रमोशन मिल जाता है, आप अभी लोअर कोर्ट से एक्विट हो गए, तो आपका सील्ड कवर ओपन होगा और आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, मगर प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि प्रोविजनल है। यदि कोई अपील सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अपील दैट मे बी फाइल्ड अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी अपील कर सकता है हायर कोर्ट में। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रमोशन जो है वो प्रोविजनल है। ठीक है, इन केस ऑन अपील, यदि कोई फिर अपील कर दिया और आप कन्विक्ट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, जो आपको प्रमोशन दिया गया था वो फिर बंद हो जाएगा, तो उसको नॉन एस्ट बोलते हैं। देखिए, सपोज आपको अभी लोअर कोर्ट से आप एक्विट हो गए, तो जो भी डीपीसी रिकमेंडेशन दिया था जो सील्ड कवर में था वो इफेक्ट होगा और एज यूजुअल आपका प्रमोशन होगा, मगर वो प्रोविजनल प्रमोशन होगा। सपोज उसके अगेंस्ट में कोई अपील कर दिया हायर कोर्ट में, ओके, और हायर कोर्ट में आप कन्विक्ट फिर हो गए, हायर कोर्ट उसको स्टे कर दिया और फिर उसमें कन्विक्ट हो गए, तो जो प्रोविजनल प्रमोशन था वो नॉन एस्ट हो गया, नॉन एस्ट एक न्यू टर्म है, एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्टैंड रिवर्टेड, फिर आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, बिफोर प्रमोशन जो पोस्ट था वो फिर रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये याद रखना है, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर कोर्ट आपको एक्विट कर दिया तो आपको प्रमोशन दे दिया गया, मगर वहां पर प्रमोशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि ये प्रोविजनल पेंशन है, क्योंकि सब्सिक्वेंट टाइम में कोई हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, और ऐसा भी अपील कोई कर दिया
और अपील में आप कन्विक्ट हो गए, तब वो यहां पर क्या होगा, जो प्रोविजनल प्रमोशन आपको दिया गया था वो नॉन नेस्ट हो जाएगा, और फिर आपका जो प्रमोशन के पहले जो पोस्ट था तो वो पोस्ट को आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग, आप तो जानते हो जब 48 आवर्स आपका इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तब जो ही विल बी डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन इन टर्म्स ऑफ रूल 10 टू बी। आप देखिए सस्पेंशन जो है रूल 10 है क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का, 10 सबसेक्शन 2B को चले जाइए अब CCSC रूल्स 1965। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, तो दिस आपका 48 आवर्स आप इट मीन्स जेल में रहे, वो 48 आवर्स एक्सीड हो गया तो ये मान लिया जाएगा आपको, इमीडिएटली वो मान लिया जाएगा कि आप सस्पेंड हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। एक्शन अंडर रूल 19I, आप देखिए 19I में क्या है, ऐसा कुछ है जो जहां पर जो रूल 14 जो है, जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से प्रोसीडिंग नहीं होगा। कभी कभी कोई स्टेट सिक्योरिटी का मामला है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि उसको प्रोसीडिंग चले, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट मान लेगा कि वो कन्विक्ट है और उसको उसके ऊपर पेनल्टी लग जाए। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए उसको। और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो वहां पर आपको वार्निंग नहीं दिया जाएगा, तो मिनिमम जो पेनल्टी है सेंसियोर है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है मीन्स इट मीन्स आपको ऐसा नहीं कि कोई वार्निंग दे दिया जाएगा, वार्निंग नहीं है। मिनिमम पेनल्टी जो है, माइनर पेनल्टी आप देख लीजिए, जो फर्स्ट माइनर पेनल्टी वो सेंसियोर है, एटलीस्ट सेंसियोर। क्योंकि कब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, जब कुछ ना कुछ ब्लेम आपके ऊपर लगा तब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, तो इस केस में मिनिमम जो पेनल्टी है वो सेंसियोर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्निंग नहीं दिया जाएगा। सील्ड कवर प्रोसीजर फॉर कंफर्मेशन, ए परमानेंट वैकेंसी शुड बी रिजर्व, एक परमानेंट वैकेंसी सभी समय रिजर्व रहेगा फॉर सच एन ऑफिसर व्हेन हिज केस इज प्लेस्ड इन सील्ड कवर बाय द डीपीसी। ये भी है, जब डीपीसी आपका रिकमेंडेशन को सील्ड कवर में रखेगा तो यदि सब्सिक्वेंट टाइम में आपका एक्सोनरेशन होता है, आप मुक्त हो जाते हो जो भी चार्ज लगा है, तो आपका प्रमोशन होगा। तो इसलिए एक परमानेंट वैकेंसी ओके आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो अभी हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू सी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी, बट इन व्हिच सर्कमस्टांसेस द रिकमेंडेशंस ऑफ डीपीसी विल बी प्लेस्ड इन ए सील्ड कवर। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में बोला था, अभी डीपीसी इट मींस बैठा है और प्रमोशन, आपका प्रमोशन के ऊपर डिसीजन लेगा, मगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ गया कि जो रिकमेंडेशन लिया उसको सील्ड कवर में रखा। तो मैं बताया था चाहे किस कंडीशन में, फर्स्ट वन, द कंसर्न एम्प्लॉई इज अंडर सस्पेंशन, कि एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, तो ये सब है। तो आंसर यहां पर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों सर्कमस्टांसेस ABC है, तो तीनों सर्कमस्टांसेस में डीपीसी क्या करेगा, डीपीसी एज यूजुअल रिकमेंडेशन दे देगा आपका सुइटेबिलिटी को देखकर, वो यहां पर नहीं देखेगा कि द डीपीसी एक्चुअली कैन नॉट सी द एनी टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड मैटर। DPC does not touches all these things. DPC only check your suitability and give recommendation, but the recommendation must be in sealed cover. तो आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द पर्पज ऑफ पेंडेंसी ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्ज, जो पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग में बताया था डेफिनेशन, पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन क्रिमिनल केसेस कब होगा, जब पुलिस का जो रिपोर्ट है, पुलिस का जो कंप्लेंट है, जब ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आएगा, ओके, तब से जुडिशियल प्रोसीडिंग इफेक्ट होगा। तो आप देख लीजिए CCS पेंशन रूल्स 1972 रूल 9 सबसेक्शन 6BI, ये करेक्ट है। और जो अभी उसको मॉडिफाई किया गया, जो ओल्ड पेंशन रूल्स को, CCS पेंशन रूल्स 2021, आप देख लीजिए रूल 8 1 सबसेक्शन B सबसेक्शन I। तो इसमें दोनों में एक्चुअली जुडिशियल, जो पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन क्रिमिनल केसेस का डेफिनेशन दिया गया है। तो यहां पर आंसर बोथ A and B।
राइट। क्वेश्चन नंबर 3, appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of a government servant whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of dash from the date of convening the first departmental promotion committee। आप याद रखिए, जो फर्स्ट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी जो रिकमेंड दिया, तो कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से उसको सील्ड कवर में रखा गया, मगर एवरी 6 मंथ में रिव्यू होगा, एवरी 6 मंथ में रिव्यू होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर मिल गया, आंसर इज बिट बी, एवरी 6 मंथ्स में रिव्यू होता रहेगा। ठीक है, जो रिकमेंडेशंस को सील्ड कवर में रखा गया है, तो एवरी 6 मंथ्स में वो रिव्यू किया जाएगा। आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड, द ड्यू डेट ऑफ प्रमोशन विल बी डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द, मैं बताया था, यदि कंसर्न एम्प्लॉई पूरा मुक्त हो जाता है, फुली एक्सोनरेट हो जाता है, तब उसका प्रमोशन कब से डिटरमाइन होगा? दो चीज है, एक हम देखेंगे कि डीपीसी का फाइंडिंग्स क्या है, डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को किस पोजीशन में रखा है। ठीक है, और एक है, सेकेंड वन है, यदि आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया गया है, तो जिस डेट में जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन दिया गया है उसी डेट से आपका नोशनल प्रमोशन होगा। तो यहां पर जो पोजीशन असाइन टू हिम इन फाइंडिंग्स थ्रू द डीपीसी केप्ट इन द सील्ड कवर, ये तो ठीक है। द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज नेक्स्ट जूनियर ऑन द डेट ऑफ सच पोजीशन, ये ठीक है। द डेट ऑफ प्रमोशन इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सोनरेशन, ये नहीं है। तो आपका जो डेट ऑफ प्रमोशन होगा, तो दो रिफरेंस है, डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया था, आपको जो पोजीशन में रखा था उसके हिसाब से आपका प्रमोशन मिलेगा आपको, और यदि आपका जूनियर ऑफिसर को प्रमोशन कर दिया गया है, तो जूनियर ऑफिसर को जिस डेट में प्रमोशन किया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा। तो यहां पर जो यहां पर पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट थर्ड वन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट वन, करेक्ट स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। In case the subsequent proceedings commenced after the promotion of the junior, आपका प्रमोशन को, आपका जूनियर ऑफिसर को ऑलरेडी प्रमोशन कर दिया गया है आपका जगह में, तो in case the subsequent proceedings commenced after the promotion of the junior results in the imposition of any penalty before the exoneration in the first proceedings based on which the recommendations of the DPC were kept in the sealed cover। ये बढ़िया दिया है, ये मैं बता रहा हूं। इट मीन्स फास्ट डीपीसी आपका जो रिकमेंडेशंस को सील्ड कवर में रखा है, ठीक है, मगर सील्ड कवर में है, और सेकेंड प्रोसीडिंग एक आपके ऊपर और एक चार्ज लगा, तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनाल्टी लग गया, सेकेंड प्रोसीडिंग में पेनाल्टी लग गया, मगर फास्ट प्रोसीडिंग जो चल रहा था, फास्ट चार्ज जो लगा था, उसके ऊपर डीपीसी जो रिकमेंडेशन दिया था वो अभी सील्ड कवर में है। जैसे सेकंड चार्ज आपके ऊपर लग गया, सेकंड प्रोसीडिंग हुआ और उसमें आपके ऊपर पेनल्टी लग गया, मगर अभी फास्ट जो प्रोसीडिंग चल रहा था उसके ऊपर डिसीजन नहीं आया है, मगर उसके बाद फास्ट प्रोसीडिंग में आप एक्सोनरेट हो गए, फास्ट प्रोसीडिंग में आप एक्सोनरेट हो गए। तो इस केस में क्या होगा? तो फास्ट प्रोसीडिंग में आप एक्सोनरेट हो गए मींस सेकंड प्रोसीडिंग में पेनल्टी है, तो फास्ट प्रोसीडिंग में एक्सोनरेट हो गए मींस तो इसमें ऑटोमेटिकली रेट्रोस्पेक्टिव आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रमोशन, क्योंकि फास्ट प्रोसीडिंग में आपको एक फास्ट जो चार्ज लगा था आप उससे मुक्त आपको कर दिया गया। तो इसमें एक्चुअली आपको रेट्रोस्पेक्टिव, आपका सपोज आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था, जिस डेट में दिया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा, कि डीपीसी जो फाइंडिंग्स दिया था, तो जो फाइंडिंग जो पोजीशन था उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। तो मगर ये जो सेकेंड प्रोसीडिंग में पेनाल्टी मिला, तो ये क्या होगा ना, ये जो पेनाल्टी को मॉडिफाई किया जाएगा, नहीं तो क्योंकि ये जो पेनाल्टी लगेगा अभी प्रमोशन पोस्ट के ऊपर लगेगा, तो ये पेनाल्टी को मॉडिफाई किया जाएगा, और ये जो पेनाल्टी लगेगा वो बेसिकली प्रमोशन पोस्ट में लगेगा। ठीक है, तो अभी देख लेंगे क्या दिया है।
द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न इज प्रमोटेड, ये दे दिया, द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न इज प्रमोटेड रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोनरेशन द फास्ट प्रोसीडिंग्स। तो फास्ट प्रोसीडिंग्स में आपको एक्सोनरेट कर दिया गया, मींस रेट्रोस्पेक्टिवली आपको प्रमोशन मिलेगा। मगर आपको जो सेकेंड प्रोसीडिंग में पेनल्टी मिला, ठीक है, मगर जो सेकेंड प्रोसीडिंग में जो पेनल्टी मिला, इस केस में क्या होगा, पेनल्टी सेकेंड प्रोसीडिंग के पेनल्टी के बाद आप फास्ट प्रोसीडिंग में आपको मुक्त कर दिया जा रहा है। तो आपको फास्ट जो प्रोसीडिंग के हिसाब से आपको एक्सोनरेट कर दिया गया, मींस फास्ट चार्ज से, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रमोशन मिलेगा। और ये जो पेनल्टी लगेगा वो प्रमोशन पोस्ट के ऊपर लगेगा। अभी पेनल्टी को आइदर मॉडिफाई कर दिया जाएगा और वो जो लगेगा, इंपोज होगा, वो प्रमोशन पोस्ट के ऊपर लगेगा। तो द पेनल्टी इंपोज्ड मे बी मॉडिफाइड एंड इफेक्टेड विथ रेफरेंस टू द प्रमोटेड पोस्ट। तो ये दोनों एक्चुअली करेक्ट है, बोथ 1 और 2। इसके ऊपर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे। इन केस वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैव बीन हेल्ड अंडर द रिलेवेंट डिसिप्लिनरी रूल्स, वार्निंग शुड नॉट बी इशूड एज ए रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। हाँ, वार्निंग नहीं है, क्योंकि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है मींस ऐसा कुछ ब्लेम लगा है। ओके, कोई चार्ज ऑफिसर के ऊपर कुछ ब्लेम लगा है, इसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, तो इसके इसमें वार्निंग नहीं दिया जाएगा, शुड नॉट बी इशूड। तो ये तो करेक्ट है, हेल्ड अंडर रिलेवेंट वार्निंग शुड नॉट बी इशूड, तो ये तो करेक्ट है, वार्निंग इशू नहीं होगा, मिनिमम पेनल्टी सेंस्योर होगा। इन ए केस वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैव बीन हेल्ड अंडर द रिलेवेंट डिसिप्लिनरी रूल्स, वार्निंग शुड बी इशूड एज ए रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, वार्निंग नहीं होगा, ये गलत है। एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स that some blame attaches to the government servant, at least censure penalty लगेगा, ये तो ठीक है। तो यहां पर incorrect means second, actually second one is incorrect one, answer is bit B। क्योंकि वार्निंग डिसिप्लिन प्रोसीडिंग मींस ऐसा कुछ ना कुछ तो ब्लेम है, तो मिनिमम पेनल्टी सेंस्योर है, वहां पर वार्निंग नहीं दिया जाएगा, तो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 7, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो ये तो बहुत इजी है, कब से जुडिशियल प्रोसीडिंग इफेक्ट होगा, मैं अभी बताया था, जब पुलिस कंप्लेंट की पुलिस रिपोर्ट ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज गिवन इफ द पुलिस रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेंट इज इन द कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट। तो यहां पर आंसर आपको मिल गया, ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ऑफ व्हिच द मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्नाइजेंस इज मेड, ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर हैज रीच्ड इन द कोर्ट, हैज रीच्ड इन द कोर्ट नहीं है, ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट हैज रीच्ड इन द पुलिस स्टेशन, ये नहीं है, ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंप्लेंट हैज साइंड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट, ये नहीं है। तो फर्स्ट वन, जब वो पुलिस रिपोर्ट की पुलिस कंप्लेंट जब ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आ जाएगा, तब से जुडिशियल ऑटोमेटिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड होगा उसी डेट से। तो ये करेक्ट है, बिट ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ रिव्यू डीपीसी का रिव्यू हो रहा है, वेयर जूनियर हैज बीन प्रमोटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ओरिजिनल डीपीसी, the official would be considered for promotion if he or she is clear from business। अच्छा, और यदि जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया है मगर डीपीसी का रिव्यू में कंसर्न चार्ज ऑफिसर को विजिलेंस क्लियरेंस दे दिया गया, तो विजिलेंस क्लियरेंस दे दिया गया मीन्स चाहे वो सर्कमस्टेंसेस है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, कि इट इज पेंडिंग, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग, मगर विजिलेंस क्लियरेंस दे दिया गया, विजिलेंस क्लियरेंस दे दिया गया मीन्स आपको प्रमोशन मिलेगा। किस डेट में मिलेगा, तो आपको याद रखना है, यदि आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया है, जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दिया गया था उसी डेट से आपको नोशनल प्रमोशन मिलेगा और आपका सीनियरिटी भी रहेगा। बहुत इजी है। ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ, यही आंसर होगा, ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ द जूनियर, ऑन द डेट ऑफ क्लियर फ्रॉम विजिलेंस एंगल, ये नहीं है, ऑन द डेट डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये नहीं है, ऑन द डेट डिसाइड बाय डीपीसी नहीं है। जिस डेट में आपका जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया था उसी डेट से आपको नेशनल प्रमोशन मिलेगा और आपका सीनियरिटी भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे। द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी शैल असेस द सुइटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कमिंग विद इन द परव्यू ऑफ द चार्जशीट हैज बीन इशूड and the disciplinary proceedings are pending along with other eligible candidates
विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मैं एक चीज बता रहा हूं, जब डीपीसी सपोज ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो उस केस में डीपीसी आ गया, तो डीपीसी ये नहीं देखेगा, डीपीसी एज यूजुअल अदर कैंडिडेट्स को जैसे असेस करेगा आपको वैसे ही असेस करेगा, और उसके हिसाब से उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो सील्ड कवर में रहेगा। वो जो रिकमेंडेशंस जब देगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है, कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस पेंडिंग है। वो एज यूजुअल सुइटेबिलिटी आपको देखकर वो रिकमेंडेशन देगा, मगर रिकमेंडेशन वो सील्ड कवर में रहेगा। द रिकमेंडेशन शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन। तो ये विदाउट टेकिंग इनटू, यहां पर इनकरेक्ट दिया है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ये है क्योंकि डीपीसी जब असेस करता है, ओके, जैसे अदर कैंडिडेट्स को असेस करेगा वैसा ही चार्ज ऑफिसर को असेस करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका अगेंस्ट में कोई केस पेंडिंग है, कि कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है। तो सेकेंड वन, द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी shall assess the suitability of the government servants coming within the purview of the charge sheet has been issued, and the disciplinary proceedings are pending along with other eligible candidates taking into consideration the disciplinary case. ये गलत है, क्योंकि यहां पर दे दिया क्या है, जब डीपीसी जब असेस करता है, वो आपके ऊपर यदि कोई डिसिप्लिनरी केस है, कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस है, उसको भी कंसीडर करेगा, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा। एज यूजुअल अदर कैंडिडेट्स को जैसे असेस करेगा वैसा ही असेस करेगा। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकेंड वन इनकरेक्ट है। ओनली 2, आंसर इज बिट बी। Last question, in case the appointing authority comes to a conclusion that it would not be against the public interest to allow ad hoc promotion to the government servant recommended for promotion by the departmental promotion committee kept in a sealed cover due to pending of the disciplinary proceeding, his case should be placed before the next DPC held in the normal course after the expiry of dash period to decide whether the officer is suitable for promotion on ad hoc basis or not. 2 years है। देखिए फास्ट डीपीसी, इसका 2 years के बाद, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया, 2 years के बाद वो देखेगा कि 2 years ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मगर ये कंक्लूड नहीं हुआ है, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई क्रिमिनल केस वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो उस केस में, और वो ये चेक करेगा कि यदि आपको एड हॉक प्रमोशन दे दिया जाएगा तो इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो जो 2 years के बाद जो डीपीसी होगा नॉर्मल एज यूजुअल, वो उसी केस में आपका टोटल सर्विस रिकॉर्ड को असेस करेगा। वो आपका जो क्रिमिनल केस कंक्लूड नहीं हुआ है उसको असेस नहीं करेगा, वो आपका टोटलिटी सर्विस रिकॉर्ड को चेक करेगा, और होगा तो आपको वो एड हॉक प्रमोशन देगा, तो आफ्टर 2 years। तो आज इतना ही था, ये एक अच्छा टॉपिक था, और इसके ऊपर मैं पूरा डिस्कस किया। तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार टू।